أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ اور البتہ ضرور بالضرور ہم تمہاری آزمائش کریں گے، ڈر دے کر، بھوک دے کر، مالوں کی اور جانوں کی اور پھلوں کی کمی دے کر، اور آپ خوشخبری دے دیجئے صبر کرنے والوں کو۔ وہ لوگ جب ان کو مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور بے شک ہم اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہی لوگ ہیں تیرے پروردگار کی جانب سے ان کے اوپر رحمتیں ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ حضرات گرامی قدر، معزز سامعین اور معزز خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے یہ دنیا کائنات کا ایک ایسا بہترین نظام بنایا ہے جس میں اس نے طرح طرح کی مخلوقات کو پیدا کیا ہے۔ حیوانات بھی ہیں، جمادات بھی ہیں اور نباتات بھی ہیں، بڑے بڑے پہاڑ بھی ہیں، بڑے بڑے دریا اور سمندر بھی ہیں، اور بڑے بڑے صحرا بھی ہیں۔ مفید اور موذی ہر طرح کے مختلف قسموں کے جانور بھی ہیں، چھوٹے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، جن بھی ہیں، انسان بھی ہیں، ملائکہ بھی ہیں۔ آسمان و زمین کا یہ نظام اللہ تبارک و تعالی نے بنایا ہے۔ اسی دنیا کی زندگی میں زندگی بھی ملتی ہے، موت بھی آتی ہے، تندرستی بھی ملتی ہے، بیماری بھی آتی ہے، تنگی بھی ہوتی ہے، آسانیاں بھی ملتی ہیں، اور طرح طرح کے حالات کا انسان کو جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور انہی حالات میں دیکھا جائے وہی چیزیں جو ایک وقت میں انسان کے لیے فائدہ مند اور مفید ہوتی ہیں، دوسرے ہی لمحے وہ چیزیں انسان کے خلاف ہو جاتی ہیں اور انسان کے لیے پریشانی، مصیبت، وبال اور بلکہ عذاب کا ذریعہ جو ہے وہ بن جاتی ہے۔ انہی میں سے ایک چیز سیلابوں کا آنا ہے، پانی کی کثرت کا ہو جانا ہے۔ بارشیں نہیں ہوتی ہیں تب انسان پریشان ہو جاتا ہے، بارشیں زیادہ ہوتی ہیں تو تب انسان جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ دنیا کی زندگی میں مشکلات اور آسانیوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ کوئی ایسا ہو نہیں سکتا ہے کہ دنیا میں انسان آیا ہو اسے ساری زندگی مشکلات کا ہی سامنا کرنا پڑا ہو، اور کوئی ایسا انسان آیا ہو جس سے ساری زندگی جو ہے وہ آسانیوں کا ہی سامنا کرنا پڑا ہو۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اگر کوئی ایک آدھ لاکھوں کروڑوں میں سے کوئی مثال تلاش کر بھی لی جائے تو وہ ظاہری حالات کی بنا پر ہو سکتی ہے، حقیقت میں ایسا ہونا جو ہے وہ ممکن نہیں، بلکہ دونوں چیزیں جو ہے وہ ساتھ ساتھ۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ جب پریشانی آتی ہے تو اسے سمجھتا ہے یہ آزمائش ہے، یہ عذاب ہے۔ جب نعمتیں آتی ہیں تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا مالک جو ہے وہ مجھ سے خوش ہے، حالانکہ یہ دونوں باتیں جو ہے وہ درست نہیں، یہ دونوں ہی باتیں صحیح نہیں ہیں۔ آسانیاں آتی ہیں، نعمتیں ملتی ہیں، خوشحالی اور فراوانی ہوتی ہے، دولت کے ڈھیر لگ جاتے ہیں، گھر میں خوشیاں جو ہے وہ سماتی ہیں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کی دلیل نہیں۔ اور اگر پریشانیاں آ جائیں، مصیبتیں آ جائیں، ابتلاؤں میں انسان مشغول ہو جائے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کی دلیل نہیں ہے، بلکہ ان دونوں چیزوں کے اندر
बुनियादी मकसद ये है, आज हमको मुल्क के अंदर बिलखुसूस और पूरी दुनिया में बिलउमूम सैलाबों का सामना है। लोगों की जिंदगियां तबाह हो गई हैं, घर बार जो है वो मिलिया मेट हो गए हैं, माल मवेशी डंगर जो है वो तबाही और बर्बादी के साथ दो चार। लोगों को अपने बच्चों की बसौकात कुर्बानियां देना पड़ी। किसी का बाप चला गया है, किसी की बेटी चली गई है, किसी का घर नहीं है, किसी के पास इलाज मुआवजे के लिए जरूरियात नहीं है, किसी के लिए खाने पीने की चीज नहीं है। ये हवादिस, ये मसाइब और ये मुश्किलात इस तरह के हों तब भी, या किसी और नाहिए से हों तब भी जल्जले आते हैं, कभी जो है वो और मुख्तलिफ किस्म के फितनों का सामना करना पड़ता है। हकीकत ये है कि ये दोनों चीजें ही अल्लाह तबारक व ताला की आजमाइश। अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान मजीद ने कई जगह पे इस बात का जो है वो इजहार फरमाया है। लोगों, हम आसानियां देते हैं तो तब भी आजमाइश के लिए, हम तंगियां देते हैं तो तब भी आजमाइश और इख्तिबार के लिए, इम्तिहान के लिए। ये सूरह बकरा की मैंने आज पढ़ी है, इसमें भी यही कहा गया, वला नब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक्सिन मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात। लोगों, हो ही नहीं सकता कि हम तुम्हारी आजमाइश न करें, तुम्हारा इम्तिहान न ले, ये नहीं हो सकता। ये सारी दुनिया का निजाम हमने बनाया ही इंसान की इम्तिहान के लिए, इंसान की इब्तिला के लिए, इंसान के इख्तिबार और आजमाइश के लिए। ये सब कुछ हमने आजमाइश के लिए बनाया है। हम तुम्हारी आजमाइश जरूर करेंगे, डर देकर, भूख देकर, जानों की, मालों की और फलों की और खेतियों की कमी देकर। हम देखते हैं कि हमारा बंदा जो है वो कौन जो है वो परेशानी में आकर सब्र करता है और अल्लाह की तरफ रुजू करता है। और हम मालो दौलत देकर भी आजमाइश करते हैं, आसानी देकर भी आजमाइश करते हैं, ताकि इंसान को देखें कि कौन अल्लाह को याद करता है खुशी के मौका पर भी, और अल्लाह तबारक व ताला का जो है वो शुक्र अदा करता कि मेरे रब ने मेरे ऊपर एहसानात किए हैं, मेरा उसमें कोई कमाल नहीं है, मैंने उसमें जो है वो कोई महारत नहीं दिखाई है, मेरे फन का जो है वो ये इजहार नहीं है, बल्कि ये सारे का सारा मेरे रब का जो है वो करम है, उसने मेरे ऊपर जो है वो एहसानात फरमाए। ये दोनों चीजें सूरह फजर के अंदर अल्लाह तबारक व ताला ने दोनों बातों का जिक्र किया। फअम्मल इंसानु इज़ा मब्तलाहु रब्बुहु फअकरमहु व नअमहु फयक़ूलु रब्बी अकरमन। जब हम इंसान की आजमाइश करते हैं और उसको बहुत कुछ दे देते हैं, इनामात से नवाजते हैं, तो इंसान कहता है मेरे रब ने जो है वो मेरा इकराम किया, मेरा रब मुझसे बड़ा राजी है, बड़ा खुश है, मुझे बहुत देता है। वअम्मा इज़ा मब्तलाहु फक़दर अलैहि रिज़्क़हु फयक़ूलु रब्बी अहानन। जब हम रिज़्क़ तंग कर देते हैं तो वो कहता है मेरे रब ने तो मुझे जलील कर दिया, मेरे रब ने तो मुझे रुसवा कर दिया। ये दोनों चीजें ऐसी नहीं। वनब्लूकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितना व इलैना तुरजऊन। लोगों, हम खैर के साथ भी और शर के साथ भी तुम्हारी आजमाइश करते हैं। अच्छाई के साथ भी आजमाइश होती है, बुराई के साथ भी आजमाइश होती है। फरमाया हम जो है तुम्हारी हर तरह से आजमाइश करते हैं, व इलैना तुरजऊन, और तुमने पलटकर हमारे पास आना, फिर हम इस आजमाइश का तुम्हें जो है वो बदला देंगे। तुमने अगर सब्र किया है, शुक्र किया है, तो बेहतरीन बदला मिलेगा, और अगर सब्र और शुक्र का सामना नहीं किया तो मामला आखिरत में इससे ज्यादा मुश्किल हो जाए। इसलिए इंसान को दुनिया में रहते हुए इन दोनों पहलुओं को सामने रखना चाहिए हमेशा, कि अगर खैर आई है तो यह भी आजमाइश है। खैर के ऊपर इतराए नहीं, तकब्बुर नहीं करे, फख्र नहीं करे, शेखी ना बगोरे, लोगों को हकीर ना जाने, बल्कि अपने मालिक का जो है वो शुक्रिया अदा करे। और अगर परेशानी आ जाए, मुसीबत आ जाए, तो समझे ये मेरे रब की आजमाइश है, उसमें जो है वो सब्र का मुजाहरा करे, वावेला ना करे, चीखो पुकार ना करे, नोहा ना करे, मातम ना करे, बल्कि सब्र के साथ अल्लाह तबारक व ताला की मुश्किलात जो आई हैं उनको बर्दाश्त करे और अल्लाह ताला की तरफ रुजू करे, और अल्लाह ताला से जो है वो दिनों के तब्दील करने की जो है वो दुआ मांगे कि या अल्लाह ये दिन तू तब्दील करता रहता है, हमारे हालात को भी जो है वो तब्दील फरमा।
یہ اصل میں انسان کا جو ہے وہ معاملہ ہونا چاہیے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ جیسا کہ میں نے ذکر کیا، انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے مشکلات جو ہے وہ تباہی ہے، میرا رب جو ہے وہ نعوذ باللہ من ذالک مجھے تباہ کرنا چاہتا ہے، ہمیں جو ہے وہ استغفر اللہ من ذالک اللہ پریشان کرنا چاہتا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں۔ یہ دنیا کا سارا سسٹم اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی آزمائش کے لیے، انسان کے امتحان اور اختبار کے لیے بنایا۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ۔ فرمایا جب تک تمہارے پاس پہلے لوگوں کی طرح حالات نہیں آ جاتے تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تم کیا سمجھتے ہو جنت میں ایسے آسانی سے داخل ہوا جاتا ہے؟ ان لوگوں کو بیماریاں بھی آئیں، آفتیں بھی آئیں، مصیبتیں بھی آئیں اور پریشانیاں بھی آئیں، اور اتنے پریشان کن حالات کا ان کو سامنا کرنا پڑا۔ وَزُلْزِلُوا، ان کو ہم نے جھنجھوڑ کر رکھ دیا، ہلا کر رکھ دیا، یہاں تک کہ رسول اور اس پر ایمان لانے والے اس کے ساتھی وہ سب کہہ اٹھے متى نصر اللہ، اتنی دیر اللہ کی مدد کب نازل ہوگی؟ الا ان نصر اللہ قریب، اے نبی ان کو ذرا بتا دیجئے اللہ کی مدد جو ہے وہ نزدیک ہی ہے، کوئی زیادہ دور نہیں ہے، لہذا صبر کیجئے اور اللہ تعالیٰ کی مدد کا جو ہے وہ انتظار کیجئے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حوادث، یہ مصائب، یہ مصیبتیں اور یہ انعامات، یہ سارے کے سارے ابتلا ہیں، اختبار ہیں، امتحان ہیں، اور نیکی کے وقت، اچھائی کے وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور پریشانی کے وقت انسان کو صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر ان ابتلاءات کو دیکھ کر انسان کو اللہ تعالیٰ کے اوپر اپنا ایمان جو ہے وہ مضبوط کرنا چاہیے، تقدیر کے اوپر، قضاء اور قدر کے اوپر اللہ پر ایمان لانا چاہیے کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ میرے رب کا فیصلہ ہے، اس میں کوئی کسی دوسرے کا کردار نہیں ہے، کوئی انسان کسی قسم کا تصرف نہیں کر سکتا، یہ میرے رب کے فیصلے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا ہے، ما اصاب من مصیبت، تمہیں کوئی مصیبت جو ہے وہ نہیں پہنچتی، فی انفسکم، تمہاری جانوں کے اندر، فی الارض ولا فی انفسکم، زمین میں اور تمہاری جانوں میں، یہ سارے کا سارا جو ہے ہم نے آسمان اور زمین کی پیدائش سے بہت پہلے جو ہے وہ لکھ رکھا تھا۔ کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان یخلق السماوات والارض بخمسین الف سنہ، ہم نے یہ جو کچھ بھی کائنات کی تقدیر ہے آسمان و زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے لکھ دیا تھا۔ ما اصاب بمصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر، تمہیں جو بھی مصیبت اور تکلیف پہنچتی ہے یہ ہم نے لوح محفوظ کے اندر سب چیزوں کو پیدا کرنے سے پہلے جو ہے وہ نوٹ کر دیا، اور یہ ہمارے اوپر بڑا آسان کام ہے، کوئی مشکل کام نہیں، ہم یہ بڑی آسانی کے ساتھ ہم نے یہ کام جو ہے وہ کر لیا۔ تو دوسری بات کہ یہ سارا کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قضاء و قدر سے نعمت ملتی ہے، اس میں بھی بندے کا کوئی کمال نہیں، اللہ نے دی ہے، پریشانی آتی ہے تو وہ بھی اللہ نے دی ہے، اس لیے انسان کو اللہ کی تقدیر کے اوپر ایمان لانا چاہیے۔ تکلیف آئی ہے صبر کرے، میں اس میں کچھ نہیں کر سکتا، نقصان ہو گیا ہے تو میرا رب نے کیا، پورا بھی کرنے والا وہی، دن پھیرنے والا بھی وہی ہے۔ یہ انسان تقدیر کے اوپر ایمان لائے، نؤمن بالقدر خیرہ و شرہ، ایمان کے 6 مراتب ہیں، یہ 6 درجے ہیں، یہ 6 رکن ہیں، ان میں سے ایک رکن یہ ہے کہ انسان اچھی اور بری تقدیر کے اوپر جو ہے وہ ایمان رکھے۔ تیسرے نمبر پر انسان کو یہ پہلو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ جب حوادث آئیں، مشکلات آئیں، پریشانیاں آئیں، آزمائشیں آئیں، تو وہ یہ بھی سامنے رکھے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بھی، یہ عذاب بھی ہو سکتا ہے جو ہمارے غلط اعمال کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر مسلط کر دیا، اور اس کے بارے میں بھی قرآن مجید کی کئی آیات موجود۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، خشکی میں، تری میں فتنہ و فساد ہی برپا ہو چکا ہے،
हर तरफ फितना ही फितना है, मुसीबत ही मुसीबत है। ये क्यों है? बिमा कसबत ऐदी, तुम्हारे हाथों ने जो काम किए, तुमने जो आमाल सरंजाम दिए हैं, उसकी वजह से ऐसा हुआ है। लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी अमिलू, ताकि अल्लाह तबारक व तआला उन्हें उस काम का मजा चखाए जो उन लोगों ने काम किए। तो गलत काम करने की वजह से बसा औकात जो है वो अजाब नाजिल होते हैं, जल्जलों की शक्ल में, कुसूफ और खुसूफ की शक्ल में, और इसी तरीके से सैलाबों की शक्ल में, बारिशों की शक्ल में, आंधियों की शक्ल में, कहत साली की शक्ल में आजाब नाजिल होते हैं। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान फरमाती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी तेज हवा को देखते, आंधी को देखते, आपके चेहरे में परेशानी देखी जाती। युरफ़ु अल-हुज़्न फी वजहिही, आपके चेहरे में गम के, परेशानी के, दुख के आसार देखे जाते। अक़बल व अदबरा, आपको सुकून से बैठा ना जाता। कभी आप इधर को जाते, कभी आप इधर वापस आते, उधर जाते फिर वापस आते, चलते और टहलते जैसे इंसान बेचैन होता है। फिर जब वो बारिश बरसना शुरू हो जाती, फिर आपको सुकून हो जाता। आपसे हजरत आयशा ने पूछा, या रसूलल्लाह ये क्या मामला है? जब आप हवा को देखते हैं, तेज तूफान को देखते हैं, तो आप परेशान हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं। तो आप फरमाते हैं, आयशा ये तूफान तो हो सकता है ये अल्लाह तबारक व तआला का कहीं अजाब। ये तेज हवाएं रहमत बनकर भी आती हैं, खुशी बनकर भी आती हैं, अल्लाह की नेमत और अल्लाह का फजल और एहसान लेकर भी आती हैं। यही हवाएं जो है वो अल्लाह ताला का अजाब भी लेकर आती। मुझे डर पैदा होता है कहीं ये अजाब ना हो। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ऐसा हो सकता है, तो हमारे जमाने में तो मिन बाबे औला ऐसा है कि ये मसाइब यकीनन अजाब की शक्ल में है। उस जमाने में तो गुनाह इतने नहीं होते थे, आज के जमाने में तो गुनाहों की हद की जा चुकी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमाना कि ये अल्लाह का अजाब हो सकता है, और यकीनन ऐसा है कि बहुत सारे मामलात में अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को उनकी बदआमालियों का मजा चखाते हैं कि इंसान क्या करता है, वापस अल्लाह की तरफ लौटता है या नहीं लौटता है। तो इससे डरना चाहिए कि कहीं ये हवादिस, ये सैलाब, ये फैजानात, ये आंधियां, ये तूफान, ये जल्जले कहीं अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से जो है वो अजाब की शक्ल में ना। और फिर कुरान मजीद में भी जिक्र किया, सूरत फजर में मैंने जिक्र किया कि जब इंसान को माल मिलता है तो वो कहता है मेरे रब ने एहसान किया, इनाम किया, मेरी इज्जत की। जब उसे मुसीबत आती है तो वो कहता है रब ने मुझे जलील कर दिया, रुसवा कर दिया। अल्लाह ताला फरमाते नहीं, कल्ला बल्ला तुकरिमून अल यतीम वला तहाब्बून अला तआमिल मिस्कीन व ताकुलून अत-तुरास अकलन लम्मा व तुहिब्बून अल माल हुब्बन जम्मा। फरमाया कल्ला, हरगिज नहीं, तेरे रब ने तुझे जलील नहीं किया, तुझे रुसवा नहीं किया, बल्कि हकीकत यह है कि तुम्हारी बदआमालियां हैं, तुम यतीम की इज्जत नहीं करते। कल्ला बल्ला तुकरिमून अल यतीम वला तहाब्बून अला तआमिल मिस्कीन, मिस्कीन को खाना खिलाने के ऊपर तुम शौक नहीं रखते, एक दूसरे को रगबत नहीं लाते। वताकुलून अत-तुरासा अकलन लम्मा, तुम मीरास को, वरासत को, छोटे बहन भाइयों को और मासूम लोगों की वरासतों को बड़ी तेजी के साथ खा जाते हो और जुल्म करते खा जाते हो। वतुहिब्बून अल माल हुब्बन जम्मा, माल से बड़ी मोहब्बत है, बड़ी शिद्दत के साथ माल के साथ प्यार करते हो, जिसका नतीजा ये निकलता है कि अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से अजाब आता। तो ये अजाब, ये हवादिस, ये अजाब की शक्ल भी है जो हमारी बदआमालियों का नतीजा है। लिहाजा ऐसे हालात में हमें क्या करना चाहिए, हमारे जिम्मे जो है वो क्या काम है? उनमें से पहला काम तो यही है कि इंसान जो है वो अल्लाह तबारक व तआला से तौबा करे, इस्तिगफार करे, मुआफी मांगे। जब इंसान तौबा करता है, मुआफी मांगता है, तो अल्लाह तबारक व तआला पिछले गुनाहों पे मुआफी का कलम फेर देते हैं और इंसान की मुसीबतों को इनामात की शक्ल में तब्दील कर देते हैं, अपनी आजाबों को नेमतों की शक्ल में अल्लाह ताला तब्दील कर देते हैं। और ऐसी कौम के ऊपर जो कौम गुनाहों से मुआफी मांगती है, अल्लाह तबारक व तआला उनके ऊपर अजाब नाज़िल नहीं करता, आए हुए अजाब को टाल देते हैं। वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम,
वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तग़फिरून। ए प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप इनको बतला दीजिए जब तक आप इनके दरमियान मौजूद हैं अल्लाह तबारक व तआला इनके ऊपर कभी अजाब नाज़िल नहीं करेगा। और दूसरा, वो वक्त आप दुनिया से चले जाएं, अगर ये जब तक तौबा और इस्तिग़फ़ार करते रहेंगे अल्लाह तबारक व तआला तब भी इनके ऊपर अजाब नाज़िल नहीं करेगा। वो कौमें जो अपने गुनाहों को याद रखती हैं और अपने गुनाहों से मुआफी मांगती हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन पर अजाब नाज़िल नहीं करता। अफसोस कि आज तौबा करना तो बड़ी दूर की बात है, गलती को गलती मानने के लिए कोई तैयारी नहीं। मुल्क तबाही और बर्बादी के धाने पे खड़ा है और अभी तक हमारे बड़े एक दूसरे को चोर और डाकू साबित करने के ऊपर तुले हुए। उन्हें कौम की कोई फिक्र नहीं। एक ग्रोह कहता है दूसरे को ये चोर है और दूसरा पहले को कहता है ये चोर है। वो कहता है इसको पकड़ लो और वो कहता है उसको पकड़ लो। और ना तौबा की तरफ ध्यान है और ना अपनी गलती मानने की तरफ ध्यान है और ना कौम की तबाही और बर्बादी की तरफ कोई ध्यान। ऐसे हालात में आसानियों का आना कोई आसान काम नहीं। हालात का तब्दील हो जाना और पलट जाना बहुत मुश्किल दिखाई देता है। जहां के कौम के रखवाले और लीडर और कौम के मल्ला जो खुद ही कश्ती को डुबोने पे आ जाए तो फिर कश्ती जो है वो कैसे तैर सकती है और निजात जो है वो कैसे पा सकती है। इसलिए जरूरत है पूरी कौम के लिए, आवाम भी उसके साथ हैं और सरबराह भी उसमें शामिल हैं, कि सब लोग अल्लाह से डर जाएं और अपनी अपनी गलती का इदराक करें। लोगों से ना सही कम अज कम अल्लाह से माफी मांग, या अल्लाह फला काम मैंने गलत किया है, फला मैंने जुर्म किया है, मेरे ही गुनाह की वजह से हो सकता है ये कौम को मुसीबत के दिन जो है वो देखने पड़े। अपने अपने गुनाहों की मुआफी मांगनी चाहिए। वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून। ऐ मोमिनो, सारे के सारे कौम से अल्लाह से माफी मांगो। सारी कौम मिलकर अल्लाह के हुजूर जो है वो तौबा करो और इस्तिग़फ़ार करो। अल्लाह तबारक व तआला जो है तौबा को पसंद करता है, तौबा करने वाले को पसंद करता है और तौबा करने वाले लोगों को ही कामयाब और कामरान जो है वो करार देता है। यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम आजाब आया हुआ है लेकिन तौबा की, इस्तिग़फ़ार की है, माफी मांगी है, अल्लाह तबारक व तआला ने आया हुआ अजाब जो है वो टाल पीछे कर दिया, हटा दिया। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का एक किस्सा मौजूद है, मैंने पीछे भी कई दफा सुनाया है, तारीख में मौजूद है, अल्लाह आलम इसकी सनद कैसी है, लेकिन किस्सा मौजूद है कि एक बंदे की वजह से अजाब जारी है, कहत साली नाजिल है, बारिश नाजिल नहीं हो रही। मूसा अपनी कौम से वो बंदा निकाल दो। वो बंदा अपने ही जी में, या अल्लाह अभी तक मेरा ऐब छुपा हुआ था, आज मैं जलील हो जाऊंगा, रुसवा हो जाऊंगा, या अल्लाह मुझे माफ कर, अल्लाह मुझे माफ कर दे, अब मैं तौबा करता हूं, आइंदा तेरी बगावत और नाफरमानी नहीं करूंगा। अभी ये कलिमात उसकी जुबान के ऊपर है, बारिश जो है वो नाजिल होना शुरू। मेरा रब बड़ा रहीम है, बड़ा करीब है, गफूर रहीम है। वो तो बंदे के इंतजार में है कि वो कब दिल और दिमाग और जुबान को यकजा करके एक दफा कहे तो सही, या अल्लाह मुझे गलती हो गई, मुझे माफ कर। 1000 मर्तबा इंसान गुनाह कर चुका है, अल्लाह तबारक व तआला उसके इतना बोलने से ही उसको माफ कर देने के लिए तैयार था। फरमाया मैं तो तेरी तौबा के ऊपर खुशी बहुत होता हूं। दुनिया की हालत और है, लोगों से एक दफा माफी मांग ले वो दे देते हैं, 2 दफा माफी मांग ले दे देते हैं, तीसरी दफा कोई माफ नहीं करता, चौथी दफा कोई माफ नहीं करता। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं मेरे बंदे 1000 मर्तबा जुर्म करके माफी मांग, फिर माफी मांगने के लिए आ जा, लेकिन सच्चे दिल से माफी मांग, मैं तुझे माफ कर देने के लिए। मैं तो उस बंदे से ज्यादा खुश होता हूं जिसको दोबारा जिंदगी मिलती है और वो खुशी की आलम में कहता है या अल्लाह तू मेरा बंदा तो मैं तेरा रब हूं। इतना खुश है कि खुशी की वजह से अपनी जुबान से गलत जुमले बोल देता है। फरमाया इससे कहीं ज्यादा मुझे खुशी होती है जब मेरा बंदा मुझसे तौबा करता और इस्तिग़फ़ार करता। आज कौम के अंदर जिना आम है, चोरी आम है, डाका आम है, करप्शन, बेईमानी, बदउनवानी, जुल्म और ज्यादती आम है, लोगों के माल नाजायज हड़प करना ये आम है।
वालिदैन की नाफरमानियां, बेटों और औलाद के ऊपर जुल्म, बीवी के ऊपर जुल्म, शौहर के ऊपर जुल्म, रिश्तेदारों के साथ ज्यादतियां अपने उरूज के ऊपर हैं। ऐसे में सिर्फ हमारे सरबराहानी कसूरवार नहीं है, पूरी रियाया के अंदर बुराई जो है उनके अंग अंग में और उनके रच जो है वो जड़ों में रची और बसी हुई है, जिसकी वजह से तौबा और इस्तिगफार करना सबके लिए बहुत जरूरी है। सब कौम को चाहिए, सबको चाहिए अपने अपने तौर पर अल्लाह के हुजूर जो है वो माफी मांगे, अल्लाह से इस्तिगफार करें, अल्लाह से दुआ मांगे। अल्लाह तबारक व तआला दिनों को तब्दील करते जो है वो देर नहीं लगा, वो यकदम नीचे को और यकदम जो है वो ऊपर को कर देते हैं, उसके आगे कोई चीज जो है वो मुश्किल नहीं है। तो सबसे पहली बात तो यही है कि इंसान जो है वो अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर गिड़गिड़ा कर अपने गुनाहों की माफी मांगे। अगर मांग लेगी तो इसी का फायदा है, नहीं मांगेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला का बिगाड़ने वाला कोई नहीं, अल्लाह का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अल्लाह को नुकसान कोई नहीं पहुंचा सकता। जो भी इंसान नुकसान पहुंचाएगा वो अपनी जात को ही नुकसान जो है वो पहुंचाएगा। दूसरे नंबर पर कसरत से दुआ करनी चाहिए। जो हालात आ जाते हैं उन हालात को तब्दील करने के लिए दुआ बुनियादी और मेन किरदार अदा करती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारिश के लिए, एक बदवी आया खुतबा जुमा में, या रसूलल्लाह बारिश नहीं हो रही, रस्ते बंद हो गए, जमीन खुशक हो गई, जानवर भूखे और प्यासे मरने लगे हैं, कहत साली नाजिल है, दुआ कर दीजिए अल्लाह ताला बारिश नाजिल फरमाए। आपने हाथ उठाए, दुआ फरमाई, अल्लाह ताला ने बारिश नाजिल फरमाई। हफ्ता भर बारिश होती रही। अगले जुमे में फिर वही बदवी आया या कोई और आदमी आया, उसने कहा या रसूलल्लाह रस्ते बंद हो गए, जमीनें बर्बाद हो गई, जानवर पानी में डूबने लगे, मरने लगे हैं, बारिश बहुत ज्यादा हो चुकी है, दुआ मांगिए अल्लाह तबारक व तआला बारिश बंद कर दे। आपने फिर हाथ उठाए, दुआ मांगी, अल्लाह ताला ने बारिश बंद कर दी। अल्लाह तबारक व तआला दुआओं को कबूल करता है। वकाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, तेरा रब तो ये पुकार पुकार कर कहता है, ऐ मेरे बंदे दुआ तो मांग, मैं तो तेरी दुआ कबूल करने के लिए तैयार हूं। तेरे दुआ जब हाथ उठते ही नहीं तो मैं कैसे दुआ कबूल करूं? अल्लाह तो फरमाते हैं, मैं बूढ़े आदमी के सफेद बालों की लज रखता, मुझे हया आता है उसके सफेद बालों को देखकर मैं उसके हाथों को खाली लौटा दूं। क्या हम में कोई बूढ़ा नहीं है जो गिड़गिड़ा कर आजी और इंकिसारी से अल्लाह से दुआ मांगे? असल में अल्लाह के साथ ताल्लुक ही नहीं है, अल्लाह के साथ रबत ही नहीं है। इंसान दिल के साथ, दिमाग के साथ हाजिर करके और अपने आप को अल्लाह का बंदा और मखलूक समझकर और अपने रब को खालिक समझकर अल्लाह से दुआ तो मांगे। अल्लाह तबारक व तआला यकीनन इंसान की काया जो है वो दुआओं के जरिए पलट देने वाले हैं। अद्दुआ ला युरद्दु तक़दीर इल्ला दुआ, बाज़ रिवायात में आता है कि दुआ तो तकदीर को भी बदल देती। दुआ तो अल्लाह तबारक व तआला अपने फैसले दुआओं की वजह से जो जाहिरी तौर पर उलट हो रहे थे उनको चेंज जो है वो कर देते हैं। इसलिए इंसान को दुआ का दामन जो है वो कभी तर्क नहीं करना चाहिए। मोमिन का तो असल सहारा ही अल्लाह ताला से दुआ करना है। जब कभी मुश्किल आती है, परेशानी आती है तो इंसान अल्लाह से दुआ करता है, दिल को सुकून हो जाता है कि मेरा रब जरूर मेरी सुन रहा है और अनकरीब मेरी मुश्किल को जो है वो चेंज कर देगा, मेरे हालात को जो है वो तब्दील कर देगा। इसलिए दुआ को जो है वो अपने साथ रखना चाहिए। तीसरा और आखिरी काम, बहुत से करने वाले हैं लेकिन बात को खत्म करूं, तीसरा काम यह है, ऐसे मुश्किल हालात में अपने भाइयों के साथ शाना बशाना खड़े हो जाना चाहिए। परेशानी के वक्त अपने मुसलमान भाई को लूटना नहीं चाहिए, उसकी जिंदगी को और तबाह नहीं करना चाहिए। हादसात होते हैं तो कई ऐसे लोग भी होते हैं जो मर रहा है, उसके गले से जंजीर उतार ली, उसके हाथ से घड़ी चाल ली, उसके जेब से बटुआ निकाल लिया और पैसे निकाल लिए। पर मैं ऐसा न, अपनी जेब से निकालकर अपनी जरूरतों को कुर्बान करते हुए अपने भाई की जरूरतों को पूरा किया। मसलुल मोमिनीना फी तराहुमिहिम व तआतुफिहिम व तवाद्दिहिम कमसलिल जसद इज़ा इश्तका मिन उज़वन तदाअ लहु साइरुल जसद बिस्सहरि वल हुम्मा। मोमिनों की मिसाल जैसे वाहिद की तरह, एक जिस्म की मानंद है। पाँव में तकलीफ होती है तो पूरा जिस्म दर्द महसूस करता है, टांग में तकलीफ होती है तो सारा जिस्म जो है वो महसूस करता है, बुखार हो जाता है और इंसान को पूरे वजूद पर नींद नहीं आती। मोमिनों की मिसाल तो ऐसे है,
मोमन तो इधर मशरक में अगर किसी को तकलीफ पहुंचती है तो मगरब वाला मुसलमान उसको अपनी तकलीफ महसूस करता है। तो इन मुसलमान जो हमारे बेकस हैं, बेसहारा हैं, डूबे हुए हैं, परेशानियों में गर्क हैं, मुसीबतों में और इब्तिलाओं में जकड़े हुए हैं, उनके शाना बिशाना खड़ा होना ये हमारा काम। आपने फरमाया था मन कान फी हाजत अखीही कान अल्लाहु फी हाजती, जो अपने भाई की जरूरतों को पूरा करता है अल्लाह उसकी जरूरत को पूरा करता है। मन नफ़्फ़स अन मुस्लिमिन कुर्बतन मिन कुरबिद दुनिया, जो बंदा अपने मुसलमान भाई की दुनिया की मुसीबतों में से किसी मुसीबत को दूर करता है, नफ़्फ़स अल्लाहु अन्हु कुर्बतन मिन कुरबि यौमिल क़ियामा, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसकी मुश्किलात को जो है वो हल फरमा दे। और आपने यही फरमाया था लोगों मैं अपने भाई के लिए तैयार हो जाऊं, खड़ा हो जाऊं, उसकी मदद करूं, ये मुझे ज्यादा पसंदीदा है बनिस्बत इस बात के मस्जिद नबी में बैठकर 1 महीने का इत्काफ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अगर मैं 1 महीना इत्काफ करूं, ये मुझे मस्जिद नबी में इत्काफ करना इतना ज्यादा पसंदीदा नहीं है जितना ज्यादा पसंदीदा मुझे अपने भाई की मदद के लिए उठ खड़ा होना। जो अपने भाई की मदद के लिए उठ खड़े होइए, उनकी मदद कीजिए। आज आधा पाकिस्तान जो है वो तकरीबन डूबा हुआ है, बलोचिस्तान है और सिंध है, राजनपुर है, डीजी खान के इलाके हैं, किस तरफ नजर दौड़ाएं, देहातों के देहात जो है वो पानी के अंदर डूबे हुए हैं, सामान की जगह नहीं है, सामान ज़ाया हो चुका है, खुराक नहीं है, इलाज मुआवजे की सहूलियात नहीं है, खेमे नहीं है, रिहाइश नहीं है। उनकी जरूरतों को आपने नहीं पूरा करना तो और किसने पूरा करना है। हमें चाहिए कि हम उनके शाना बिशाना खड़े हों, जो उनकी जरूरियात हैं उनके लिए मदद करें। सदका जो है वो बड़ा अजीम है। तदफउल बला व तदफउल निकम, ये सदका जो है वो बलाओं को दूर करता है, अल्लाह ताला के अजाबों को टालता है, मुसीबतों को टालता है। तदावु इबादल्लाहि मर्ज़ाकुम बिस्सदका, लोगों अपने बीमारों का इलाज जो है वो सदके के जरिए से करो। सदके के जरिए से अल्लाह ताला बीमारियों को शिफा दे देते हैं। आज हम अगर अपने भाइयों के शाना बिशाना खड़े हों तो आपको शायद मालूम ना हो अल्लाह तबारक व तआला हमारा सदका खैरात करने की वजह से कितने हमारे मसाइल जो है वो हल कर देगा। इसलिए जरूरत है कि आप और हम सब मिलकर अपने भाइयों के शाना बिशाना खड़े हों और उनके साथ ताउन करें। हमारे कुछ मुखय्यर हजरात जो हैं वो ताउन के लिए खड़े हैं और वो आपकी तरफ से मुंतजर हैं कि आप उनको सदका खैरात दें और आपका ये सदका खैरात जो है वो वहां तक पहुंचाएं ताकि वो लोग अपनी जिंदगी जो है वो दुरुस्त कर सकें, अपने हालात जो है वो दुरुस्त कर सकें और दुनिया में जो है वो आसानी के साथ जी सकें। मैं दूसरे खुतबे में इंशाअल्लाह ऐलान करता हूं। तो तमाम साथियों से गुजारिश है कि भाइयों की मदद के लिए जो है उनके साथ ताउन करें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हमें आजमाइशों से महफूज फरमाए और जब कभी आजमाइशें हमारे ऊपर आ जाएं तो अल्लाह ताला हमारी आजमाइशें जो है वो दूर फरमा दे और हमें आसानियों के साथ दुनिया भी और हमारी आखिरत भी जो है वो बेहतर बना दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।